Thank you very much. Today, I am going to discuss the multiplication without regrouping. So, the title of my today's lecture is multiplication without regrouping. Without regrouping. I will take some examples for this and I will show you the meaning of without regrouping. For example, example 1. Example 1. Multiply 24 by 2 and obviously without regrouping. Without regrouping. Without regrouping. P and I. Solution. Practically, there are two ways to multiply. First is known as horizontal multiplication. Horizontal multiplication. In a horizontal multiplication, again further there are two ways to do this one. The first method I am doing this one. So simply, how you can write the horizontal? There are two ways, horizontal method and column method. So the horizontal method means 24 into 2. And here I want to suggest that any multiplication, addition, division, you should write ones, tens, 100,000. So 24 it is ones, and this is tens, and this is ones. So how will do it? Step by step. I'm just here writing step 1. Step 1. And it is very important that we should concentrate the multiplication first at once. For example, suppose you write at O. That means at O there are 4 and at O there are 2. So 4 2 is 8. So here you write 4 into 2 is equal to 8. This is also ones, this is also ones, and this will also be ones. So once you are writing 8, write here ones. This is then at T, step 2. Step 2 at T. Be careful that at T is equal to 2 T and 2O is equal to 4 T will be there. So here it will be 4 T. Writing of ones and tens makes the multiplication very clear. And you just see, when you are multiplying these ones at once, it is independent of the multiplication of 2t by O2. And because of that, it is called the
without regrouping. So I'm just mentioning since multiplication in each case are dependent, hence it is known as without multiplication without regrouping. This is very, very important. This is the first method. Now question is, what is the second method? Just say, second method, here I write. Suppose you have written 24OT into 2. So if you want to write 24 in expanded form, so how will do it? Very simple, ji. 2T plus 4, once I am writing here, because if you write O, there will be a misunderstanding. Here also this is into 2 ones. Simple multiplication. You want to open the bracket, these two should be multiplied by 4 and as well as T. Just say. So first multiply these two here. 2 2 ja 4 T plus 2 4 ja 8 ones. This is expanded form. I am repeating all this terminology because it should be remembered by the students. Then how you can write? Write here O, write here T, 4 and 8. This is the horizontal method, two method, first like this and second like this. Now I am going to do for the vertical method, B. B is a vertical method. Sometimes it is also called a column method. So step 1, write multiplication in column wise. How you write? Here just write it. 24 into 2. But be careful that this is multiplicand. And this is multiplier. And this is a product. Now this is O and this is T. Step 2. अब देखिए, we have to multiply multiplicand by multiplier. Multiplier is at once. So multiply O of multiplicand
multiplicand by O ones of multiplier. That means 4O into 2O is equal to 8O. Then write 8 at ones of product. This is very simple, clear. तो वंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पे ये होगा. और स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 मल्टीप्लाई 2 at T of multiplicand by 2 at ones of multiplier. अब ये क्या होगा, आप लिखेंगे यहां पर 2t इंटू 2o इज इक्वल टू 4t. तो यहां पर 4t लिख दीजिए. अब स्टेप 3 हो गया. स्टेप 4 क्या होगा, राइट 4 at T of sum. That is 4. Or in this case also, the multiplication of multiplicand and the multiplier are independent to each other, and because of that it is called without regrouping. Now here I want to give the example 2. Example 2. Example 2. This is all without regrouping. Now, suppose question is multiply 23 by 22, obviously without regrouping. In the first case, multiplicand was 2 digit and multiplier was 1 digit. But here multiplicand is 2 digit and multiplier is also 2 digit. So here you can, I am not going to talk of the, you can say this horizontal and the 2 method, because horizontal method is generally not adopted by the students. Generally it is adapted for the knowledge purpose. So I will use the vertical method, solution. Step 1. Write multiplication in column
or vertical, meaning is the same. I am repeating so that sometimes vertical is used word, sometimes column is used. Now just say, here it is very, very important to notice, point out this multiplication of 2 digit by 2 digit. Here it is 23 and multiplied by 22. Here O, T, Schaeffer said write H. This is multiplicand, this is multiplier, and this is product. This is not product. I will mention where is the product. This is not a product. Here up to here यहाँ पर बात करिए. And step by step I am going to write it. So you just draw a line here. Here I am just putting a drawing here. And step 1. Be careful. Here multiply 3 at O. ध्यान सुनिएगा. तो यहां पर पहले आप 3 लिख लीजिए, इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई से तो बाई 2 at O of multiplier अब देख फिर यहां 2 लिखिए, बट दिस 2 is at once, so you multiply here with 1. That's very, very important. When you are multiplying any number of digit with the digit equal to 2 or more than 2. अब क्या हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है 6. चलिए ये 6 हो जाएगा, तो यहां पर आपका ये 6 आ जाएगा. अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा. तो स्टेप 2 यहां पर मैं लिख रहा हूं. स्टेप 2 हमको एक्चुअली ये चीज हमको यहां पर लिखना चाहिए, यहां पर लिखना चाहिए. मैं दोबारा लिख देता हूं. दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6. यहां लिखना चाहिए, यहां हमको नहीं लिखना चाहिए. जो है भाई मिस्टेक मैं यहां पर कर दिया हूं, लेकिन लिखना नहीं चाहिए इसको. अब देखिए स्टेप 2 क्या है, मल्टीप्लाई स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं. मल्टीप्लाई 2 एट टी. टी अब क्या है, मल्टीप्लिकेंट है. ऑफ मल्टीप्लिकेंट बाई 2 at O of multiplier. तो यहां क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1, बिकॉज दिस 2 इज एट वंस. वंस मीन्स 1. ये आपका T है, ये आपका O है, और ये आपका हो जाएगा 4T. अब फिर लिखिए राइट 4 at T of addend 1. तो ये आपका यहां पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा addend 1.
ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, बिकॉज इट विल बी ऑल्सो यूज इन द डेसिमल ऑल्सो। अब देखिए स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेप 3। अब देखिए ये मल्टीप्लायर का ये टेंस है, ध्यान रखिएगा, दिस टू इज टेंस। सो मल्टीप्लाई ध्यान देखिए, मल्टीप्लाई 3 एट ओ ऑफ मल्टीप्लिकेंड या ध्यान देखिए, मल्टीप्लिकेंड बाई 2 एट टी ऑफ मल्टीप्लायर। अब इसकी मीनिंग क्या जा रहा है देखिएगा, हमको जो 3 में जो है, देखिए यहां पर देखिए 3 आपका जो है मल्टीप्लिकेंट क्या हो गया है, और 2 क्या हो गया है, मल्टीप्लायर का टी है, लेकिन ये दिस 2 है टेंस पर है, इसलिए यहां पर टेंस हो जाएगा जो है। और इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देखिएगा जो है, इसका मतलब होता है कि 0 का मतलब आप यहां पर 0 कर दीजिए, और इसको एक तरह से कर लेते हैं 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 6 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हमारा 60 हो गया जो है। अब हमारा इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करना है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका जो है स्टेप 4, मल्टीप्लाई 2 एट टी ऑफ मल्टीप्लिकेंड बाई 2 ऑफ मल्टीप्लायर। यहां टी छूट गया तो यहां पर टी कर दीजिए। ये सिंपली अब 10 का मल्टीप्लाई यहां नहीं करना, केवल एक बार करना है, तो फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 2t इज इक्वल टू 4, राइट 4 एट h ऑफ एडेंट 2। अब एक h में लिखा है, यहां पर आप 2 कर दीजिए, नो 4, इट शुड बी 4। यहां पर 4 हो जाएगा। अब ये एडेंट 2 हो जाएगा, अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 0 1 एंड 506। अब देखिए ये आपका जो है थोड़ा जिसको नहीं समझ में आ रहा है अलग बात है, अब दोबारा इसको मैं कर रहा हूं, दूसरे वे से कर रहा हूं। इसमें मैंने जो है हमेशा मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, एडेंट 1 एडेंट 2 मैं यूज किया हूं। इसको और दूसरे अल्टरनेटिव मेथड में बता रहा हूं, इसको अल्टरनेट मेथड इसको कह दीजिए। तो अल्टरनेट मेथड में इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, इसको मैं रख रहा हूं। देखिए अब मैं इसका जो है अल्टरनेट मेथड मैं बताऊंगा, वो आप देखिएगा, जो मोस्टली ज्यादा लोग यूज करते हैं, अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं। ये थोड़ा छोटे बच्चों के लिए समझना मुश्किल होता है, तो इसे अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं जो है। अब देखिए सिचुएशन यही रहेगा, बट अब स्टेप 1 क्या होगा, अब देखिए यहां पर स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 ही होगा, मल्टीप्लाई 23 ऑफ मल्टीप्लिकेंट बाई
टू एट ओ ऑफ मल्टीप्लायर, ओ ऑफ मल्टीप्लायर। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 23 इंटू 2 इज इक्वल टू सिंपली 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46। देखिए यहाँ पर 46 हमने कर दिया है, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 23 इंटू 2 इंटू 1, बिकॉज दिस 2 इज एट वंस। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जो है। स्टेप 2 इट इज शॉर्टर। स्टेप 2 मल्टीप्लाई, या ध्यान दें, मल्टीप्लाई 23 बाई 23 ऑफ 23 ऑफ मल्टीप्लिकेंट बाई 2 at t, this is important, of multiplier। अब ये कैसे हो जाएगा, देखिए 23 इंटू 2 इंटू 10, बिकॉज इट इज अ टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब देखिए इसको यहां पर लिखिए 23 इंटू 2 इंटू यहां पर 10 कर दीजिए, और सिंस 10 में एक शून्य है तो यहां पर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 8 कर लिए, घूमेंगे। दिस मेथड इज वेरी सिंपल, और जो बहुत लड़के शार्प हैं और डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारा पहला वाला मेथड यूज कर लें, विद द सेम थिंग। Now I am just going to tell you the 3 digits or without regrouping. Example 3. I will use this method only. हमें भी ये बहुत अच्छा लगता है, सिंपल लगता है। Or in all cases, the multiplication of ones and ones, t and ones are independent to each other. अब देखिए multiply, example 3, multiply 3 डिजिट नंबर है, यहां पर है 3 डिजिट नंबर क्या है, 329 बाई 10। ये ध्यान रखिएगा जो है। अब मल्टीप्लाई करिए, वर्टिकल कॉलम में लिखिए स्टेप 1 राइट multiplication in column। Simply here 329 into 10, ये मल्टीप्लिकेंट है, ये मल्टीप्लायर है, फिर एडेंड आएगा तब प्रोडक्ट आएगा। ये O है, ये T है, ये H है, सिंपल। अब देखिए वंस यू आर मल्टीप्लाइंग 0, स्टेप 2, मल्टीप्लाई 329
बाई 0, और ये हो जाएगा 329 इंटू 0 इंटू 1 इसलिए आएगा क्योंकि 0 वंस पर है. बट एवरीबॉडी नोज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मल्टीप्लाई 0 बाई एनी नंबर, द रिजल्ट इज ऑलवेज 0. Write 1 0, 2 0, 3 0, no meaning. So 0 0 0 is the meaning of 3, because here it is a 3 digit, OTH, because of 3 0 have written. Step 3, multiply. अब यहां पर लिख सकते हैं, ये चीज यहां भी लिख सकते हैं, 329 इंटू 0 इंटू 1, मल्टीप्लाई 329 बाई 1. 1 टी पर है, ध्यान रख लीजिएगा, ये 0 भी टी पर है और ओ पर है. ये ओ पर है, ये ओ पर है, इसलिए यहां पर 1 लिखे हैं. यहाँ टी है तो 329 इंटू 1 बाई 10, ये क्या हो जाएगा 3290. तो ये हो जाएगा 0923. अब ये एड एंड 1 हो जाएगा. एड एंड 1 को हम ADDI कर दे रहे हैं 1, और इसको ADD 2 कर दे रहे हैं. अब इसको ऐड कर दीजिए और ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 0923. इसका कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10, सो 1 0 राइट हैंड साइड में हो जाएगा. 100 से करेंगे तो 2 0 हो जाएगा, 1000 से करेंगे तो 3 0 हो जाएगा. तो ये आपका जो मल्टीप्लाइड बाई 10 है. अब इसी को एक्सटेंड में कर रहा हूं, इसको बाई 100 से करने के लिए जो है, सपोज कर लो मैं लिख रहा हूं कि ये क्वेश्चन में दे रहा हूं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मतलब लिखिए आप जो है. अब ये आपका एग्जाम्पल जो है 4 हो गया, सपोज कर लीजिए 4 हो गया. अब मल्टीप्लाई 329 बाई 100. मैं स्टेप्स नहीं लिखने जा रहा हूं, केवल समझाऊंगा जो है. अब देखिए 329 और यहां पर 100, ये आपका है. ये O है, ये T है, ये H है, फिर TH आएगा, फिर TTH आएगा. 10,000 लिख दिया हूं. ये मल्टीप्लिकेंट है, दिस इज मल्टीप्लायर, और फिर एडेंड है. अब देखिए ये इंटू है यहां पर. अब इसमें क्या होगा कि 329 मैंने पहले कहा था, फिर O एट 1 है, इस 1 की वजह से यहां पर 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट का है. 1 2 3. अब ध्यान रखिएगा, अब दूसरा है वही आएगा 329 इंटू 0 इंटू यहाँ 10 हो जाएगा. ये भी 0 होगा, लेकिन कहाँ कितना होगा 4 0 होगा, क्योंकि 2 डिजिट 1 2 3 4, यहाँ के 1 2 3 4. और फिर देखिए 329 इंटू 1 इंटू 100, क्योंकि ये H पर है और ये T पर है. अब ये कितना हो जाएगा 32900. इसे देखिए 0 0 9 2 3 ऐड कर दीजिए 0 0 9 2 3. ये एडेड 1 हो जाएगा, ये एडेड 2 हो जाएगा, और ये एडेड
3 हो जाएगा और दिस विल बी प्रोडक्ट। अब इसमें भी क्या है, ये भी विदाउट रीग्रुपिंग है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं जो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होगा, मतलब जो है एग्जाम्पल 5 करके दे रहा हूं जो थोड़ा सा अलग होगा। सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस वन, क्योंकि ये दैट विल बी लास्ट एग्जाम्पल ऑफ विदाउट रीग्रुपिंग। वो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल 5, मल्टीप्लाई 3 to 4 by 22। ये सब विदाउट रीग्रुपिंग का है। इसमें भी मैं स्टेप नहीं लिखने जा रहा हूं, आई एम जस्ट मेंशनिंग 3 to 4 into 22 OTH। ये मल्टीप्लिकेंड, ये आपका मल्टीप्लायर है, फिर ये एडेंट 1 आएगा, फिर एडेंट 2 आएगा। ये एडेंट डिपेंड अपॉन दिस डिजिट। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करिए 3 to 4 into 2, इसके ऊपर ओ जरूर लिखिए, ओ मीन्स वंस, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 जा 8 इंडिपेंडेंट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, OTH। इसके नीचे लिखिए 8 4 6, जहां गलत तो चेक कर दीजिएगा। अब आइए टी ऑफ मल्टीप्लायर है, तो यहां पर 3 to 4 इंटू अगेन 2 एट टी इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ टी है तो 10 हो गया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 6 4 8 0 OTH TH। राइट कर लीजिए, 0 8 4 6। अब देखिए ये, अब इसको एडेंट 1 इसको प्लस कर दीजिए, तो 8 4 12, 1 यहाँ पर जाएगा, 7 4 11, 1 यहाँ जाएगा 7। अब देखिए ये TH यहाँ पर आपको आ जाएगा। लड़के क्या करते हैं कि इसको साथ साथ लिख देते हैं। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल दैट ईच डिजिट हैव देयर ओन वंस, टेंस, 100, 1000। दैट इज हाउ। अब हम लोग के पहले क्या कहा जाता था, मास्टर लोग कहते थे कि भैया पहले में तो कोई शून्य अंक न छोड़ो, दूसरे में इसको कट करो, फिर यहां से शुरू करो, तीसरे में 2 बार कट करो, यहाँ उसकी मीनिंग यहां पर एक्सप्लेन हमने किया है। थैंक यू वेरी मच।